मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। बजट में इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए क्या होगा? यदि आप न्यूज फ्लो की बात करें तो माना यह जा रहा है कि इस साल ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर के पास हेडरूम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को किसी प्रकार का एक थ्रस्ट या फोकस देने के लिए। फिस्कल कंसोलिडेशन एक अहम मुद्दा है जिसके चलते पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं आ पाएंगे। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे क्या असर पड़ सकता है? बजट में प्रावधान किस प्रकार के हो सकते हैं जिससे इस सेक्टर को थोड़ा सा पुश मिले? इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से हैं श्री सुनीत कुमार महेश्वरी, एमडी सीईओ हैं एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और मेंबर हैं सीआईआई के नेशनल काउंसिल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर के। परवेश मिनोचा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फीडबैक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से। किशोर कुमार मोहंती जी भी हमारे साथ हैं, एमडी गैमर इंफ्रास्ट्रक्चर, और हेमल जुबालिया, पार्टनर केपीएमजी इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो अहम मुद्दा यही है कि जिस प्रकार की हालत हमने इस देश में देखी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, जो गिरावट हमने महीना दर महीना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो गिरावट देखी गई है इस सेक्टर की एक्टिविटी में, प्रोडक्टिविटी में, और जो हालात हैं उनको अरेस्ट और उनको सुधारने के लिए सरकार क्या कर सकती है? महेश्वरी जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए इस साल बजट में किस प्रकार के प्रावधान की आप उम्मीद कर रहे हैं जिससे कि सेक्टर को एक पुश मिले? आई थिंक कि इस बार फिनेंस मिनिस्टर के पास बहुत ज़्यादा हेडरूम तो होगा नहीं, बट अगर कुछ चीज़ें वो कर सकें तो ज़रूर सुविधा होगी। वन इज़ दिस 80IA का एक्सटेंशन जो है, इफ़ इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 12th प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years or whatever, 4.5 years now. I think it will be useful because these are all long-term investments and a lot of these investments still needed. See, the other is on tax-free bonds. There was this ATCCF. There is another tax-free bond that is today available for only a limited set of entities which are mostly in official domain or state-owned entities. But if this can be opened up to a larger group of thing for infrastructure financing, including in private sector or for infra bonds or for to banks which lend to infrastructure sector in PPP or whatever, or even to infra finance companies, then I think it does ensure that funds can flow. Well, I am not sure whether the government can provide any additional funds or whether they have the headroom to do that. But one last bit that I would definitely like them to do, which has two things related to it. One is the government dues, or at least the central government agencies' dues to Indian private sector construction businesses, or even roads and construction businesses, if I club them together, are, my estimates are about of the order of about 45,000 crores. And if we take a multiplier effect of about totally say 3.5 times, that is, it percolates down to suppliers and vendors in that many times, that's the cascading effect. So about 1 lakh or 1,20,000 crores is the cascading effect of liquidity crisis in the thing. If these payments can get out into the system, I think it will alleviate the liquidity crisis that is there. And the other corollary is that in the short run, these construction companies don't have any liquidity or this thing to go ahead and do fresh investments. In such a situation, probably for the next 1 year, it might be good to encourage EPC projects from NHAI and other organizations, because that's the fastest kineation effect that can be there in terms of kickstarting the economy. This is what would get enough capital flow coming back into construction businesses. This is the sector that is affected maximum as of now today, and related to it all the vendors etc. that are there to this sector. And if you see the restructuring and the CDR also with in the CDR forums, there is a fair amount of companies coming in from this area. So this needs to be alleviated, which will get the investment climate back. In a year preceding to the budget, I would find it very difficult to expect anything more than this.
ये तो रही बात फाइनेंसिंग की। मिस्टर मोहंती, आप बताइए, डेवलपर होने के नाते आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या प्रावधान करने चाहिए सरकार को बजट में ताकि आपके सेक्टर को एक नया पुश मिले? क्योंकि देखा यह गया कि फाइनेंसिंग अपने आप में एक मेजर कंस्ट्रेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट अप्रूवल्स का है, कंस्ट्रेंट चाहे वो आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल की बात कर लें, चाहे वो आप और सरकारी विभागों की बात करें, तो अप्रूवल्स का एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? The problem in the infrastructure segment basically is threefold. One is of course it's a capital hungry business, so इसके लिए पैसा हमेशा जरूरत पड़ता है, whether equity हो कि debt हो, you need a huge amount of capital for this business. Second is a lot has been talked about policy paralysis, so policy is driven by lot of policy, and this is the basic kickstarter for any economy to sustain and survive or grow. So policy interventions are required, but it is lot has been said about policy paralysis. I would not like to highlight too much on the policy paralysis. The third critical area जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को, वो है इम्प्लीमेंटेशन डिस्कनेक्ट्स. Implementation disconnect starting from environment clearance to forest clearance to land acquisition to settlement of bills or disputes by different agencies, cash flow coming in time, and all related issues. So पहले हम कैपिटल में आए कि कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आए, तो more than the debt might be, debt till now has not been a big issue in the infrastructure segment. Bank more or less, at least companies like us have got all the projects financial close. So हम लोग देखे नहीं कि जे फाइनेंशियल क्लोजर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट सफ़र कर गया है, unless the concessionaires or developers had made a mistake of bidding very aggressively and found it difficult to do the financial closure. But on the equity side, there is a huge problem. Everybody should understand the infrastructure industry, especially in the corporate sector, is in the fast generation. So nobody has created enough capital to invest huge amount of capital into big ticket infrastructure projects. इसके लिए जो सपोज नाउ माइसोरी साहब जैसा बोले कि जो ATI को एक्सटेंड किया जाए 12th 5-year प्लान को, लेकिन इसका पहले मैं बोलना चाहूँगा आज भी जो ATI बेनिफिट है, इट इज ऑलमोस्ट टेकन अवे बाय मैट. So the first demand from the infrastructure industry ये होना चाहिए कि जे ये इंसेंटिव आना चाहिए कि जे the infrastructure industry should be kept out of the MAT purview. That will really give a cash flow advantage to the infrastructure company to channelize the funds into equity investment. The second is आज का दिन में concession agreement and different covenants are there in the secondary market. Unless you create activate a secondary market, it's very difficult to raise capital into the infrastructure projects and again infuse आज equity into the newer projects. So secondary market interventions and market making on the secondary market by removing the deterrents in the concession agreement and in the policy is very, very critical. Third thing is India has a very high propensity of almost 40% in savings, but these savings are not channelized to the infrastructure industry. So it is high time through the budget during budget time some incentive come to the retail investor, which will might be trigger a retailization of infrastructure process, because infrastructure though perceived as a big ticket and big player business, but it is basically used by the retailers, users only. So it has to be, the infrastructure segment has to be retailized. For that, the first step will be to channelize the retail investment into infrastructure by providing tax incentive or other benefits so that the funds are flowing into the infrastructure industry. Lastly, the most critical part is the implementation. I am one of those advocates who has always keep saying that same set of policies and rules in the last 6-7 years before, might be 1 year, was yielding results. Suppose for example good results in the road sector and few other infrastructure sector. Why today it is not able to yield result into the present situation? The biggest disconnect is implementation bottlenecks or the nuisance value created in different agencies just to procrastinate every decision and every dispute and dragging into the litigation process, where the cash flow is in the system is being taken away. Lastly, today just before this program might be we are discussing about the oil price hike.
The diesel price might be was stagnant almost for a long period, 5-7 years, and suddenly it has gone up by, for the commercial use or for infrastructure, by 11 rupees, and again every month it will increase by 50 paisa. It seems that's the policy guideline. Does it mean that the losses of the oil industry is being passed on to the infrastructure industry, or part of it is passed on to the infrastructure industry, and all the infrastructure industry should bear the brunt of that increase of the diesel cost? So in the concession agreement or in the guideline of the BOT, there is a change of law clause. I think it's now time has come, few things like this diesel price hike, or might be the circular or the court directive on the minor minerals, and some of the state government's restriction on mining on aggregates. This should come under change of law clause, and the compensation provided to the infrastructure players or infrastructure project, so that these projects remain viable rather than becoming unviable, and quite a few players trying to exit out of those projects. So my initial submission will be this on the infrastructure development, and might be the what can be expected from the budget. जी, ये तो रही बात फाइनेंसिंग की, और ये रही बात डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्री की और क्या मांग है बजट में, और क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। जो हमने न्यूज फ्लो देखा है जिसमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज अनवायबल प्रोजेक्ट से निकल रही हैं, क्या ये भी एक समस्या का विषय है? इस पर भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने सभी विशेषज्ञों के साथ। मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले देखा, विशेषज्ञों की मांग है कि फाइनेंसिंग के आयाम बढ़ाने चाहिए, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवेश जी, आप बताइए अहम मुद्दा क्या है? देखा हमने ये है कि सरकार हर साल एम्बिशियस प्लान्स डिक्लेयर करती है, 12 5 ईयर प्लान में भी बहुत एम्बिशियस टारगेट्स दिए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन मसला एग्जीक्यूशन का है, मसला फाइनेंसिंग है। लेकिन यदि हम बहुत मोटे तौर पे बात करें तो एग्जीक्यूशन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। यदि आप बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेवलपर्स बाहर निकल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पिछले महीने हमने देखा कि 2 बड़े डेवलपर्स लार्ज साइज के रोड प्रोजेक्ट से बिल्कुल निकल गए। हालांकि जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी, लेकिन उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया, निकल गए। क्या ये एक ट्रेंड है जो आने वाले समय में हम देखेंगे? देखिए, ये निर्भर करेगा कि हम सरकार की तरफ से क्या कर पाते हैं। आई थिंक हमें पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, लिबरल फाइनेंसिंग चाहिए, वो सब अपने आप में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे शायद समस्या सुलझेगी नहीं। अगर हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं पीपीपी बेसिस पे, तो पीपीपी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप वाला जो इशू है वो शायद दिखाई नहीं देता आज की डेट में। एक बार पब्लिक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हो गया तो उसके बाद में वो पार्टनरशिप ऑलमोस्ट खत्म हो जा रही है। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि आगे इसको चलाना कैसे है। अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इशू आया है, उस कंसेशन में इशू आया है, चाहे वो ट्रैफिक की वजह से है, चाहे वो डिले की वजह से है, चाहे वो फाइनेंसिंग की वजह से है, चाहे वो रेवेन्यू कम है या चेंज ऑफ लॉ है, तो सरकार अपनी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकती है। आपने अगर पीपीपी को आगे चलाना है, नेक्स्ट आप 5 ईयर प्लान में आप कह रहे हैं साहब कि 50% जो वो पीपीपी से आएगा, और अगर आप $1 ट्रिलियन का प्लान दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं साहब $500 बिलियन प्राइवेट सेक्टर से आए। प्राइवेट सेक्टर से आने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक एनवायरनमेंट चाहिए जो कि एक सीरियसली पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। अगर हम उसको ट्रीट करेंगे एक ईपीसी की तरह, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बड़ा एक एडवर्सरियल अप्रोच है, तो वो होगा नहीं। वो करना पड़ेगा। वो करने के लिए अगर ये सारे इशू है, चाहे वो अग्रेसिव बिडिंग इशू है, चाहे वो डिले इशू है, चाहे वो चेंज ऑफ लॉ इशू है, चाहे वो स्टक मनी इशू है, उसको अगर सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने के लिए एक फ्रेमवर्क होना जरूरी है। फ्रेमवर्क होने के लिए जैसे टेलीकॉम में है, जैसे बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, एक रेगुलेटर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर रोड में रेगुलेटर नहीं है, रेल में रेगुलेटर नहीं है, तो सारे डिस्प्यूट जमा हो जा रहे हैं। ये आपका विषय है, ये मेरा विषय है। हमारा विषय कहाँ है, पब्लिक इसमें कहाँ आती है, पार्टनरशिप इसमें कहाँ है, बहुत बड़ा इशू बन गया है। ये सारे इशू, इसके अंदर कोई भी इशू अनसॉल्वेबल इशू नहीं है इसके अंदर से। इसके अंदर ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बिड बहुत अग्रेसिव है तो उसको रोका जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए। वो बजट में दे सकते हैं या बजट के पहले देना, बजट के बाद देना, वो इसका इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन वो एक रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होना जिसके पास ये सारे विषय जाएं। दूसरा, सॉवरेन की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपीपी में प्रोक्योरमेंट से खत्म नहीं होती है, वहां से शुरू होती है।
एक पार्टनरशिप की तरह से लेके अगर पार्टनर होते हैं तो अगर आप मेरे पार्टनर हैं, आपको कुछ दिक्कत है तो मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, आपकी समस्या को अपनी समस्या बनाऊंगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। उसके लिए एक ढांचा बनना जरूरी है, उसके लिए एक सोल्यूशन आना बहुत जरूरी है। पैसे की कोई कमी नहीं है देश में, इन्वेस्टेबल फंड्स बहुत हैं अवेलेबल, नहीं है तो बाहर से आ जाएंगे, पी फंड से आ जाएंगे, सॉवरेन फंड है, वेल्थ फंड है, इंश्योरेंस फंड सब अवेलेबल है। ये ढांचा होना, एक कॉन्फिडेंस होना मार्केट में, लेंडर्स को, पी फंड्स को, इन्वेस्टर्स को के साथ हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, जो चला है, जो हमने लिया है, आगे बढ़ेगा, सेक्टर आगे बढ़ेगा, सरकार हमारे साथ है, एजेंसीज हमारे साथ है, ये इम्प्लीमेंट होगा, इसमें रेवेन्यू आएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये आज की डेट में ये पूरा कॉन्फिडेंस उड़ गया है। ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। हेमल, मैं पीपीपी के मसले पे थोड़ी सी आपसे वार्तालाप करना चाहूंगा। ये प्रश्न मैं सबके लिए रखना चाहूंगा कि क्या पीपीपी मॉडल अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब हुआ है? जिस प्रकार इसको लॉन्च किया गया था, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखे गए, एक पूरा मेरे ख्याल से एक वेबसाइट भी बनाई गई थी जिसपे पीपीपी मॉडल को ट्रैक किया जा रहा था, प्रोजेक्ट्स के नाम भी उस पे थे। तो क्या पीपीपी मॉडल अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है भारत में? आशुतोष, मैं अभी जो बताया उससे सहमत हूँ कि पीपीपी एज सच हैज टू बी लाइक अ पार्टनरशिप, एंड व्हाट वी हैव सीन सो फार इज कि वो पार्टनरशिप नहीं, बट वंस द प्रोजेक्ट इज सिक्योर्ड इट डजंट वर्क द वे इट ऑट टू वर्क इन अ नॉर्मल पार्टनरशिप. So I would second that. But if I come to really the tax where the focus area is, जो PPP मॉडल को जो टैक्स हॉलीडे मिल रही है, जिधर हम बात कर रहे थे पहले, उनको कैसे कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग टर्म दे, वो अगर एड्रेस हो इस बजट में तो काफ़ी है. बिकॉज आज भी अगर आप PPP करेंगे और अगर आप बोलेंगे कि आप बिड करो, तो कैसे आप बिड करेंगे? आप बोलेंगे कि मुझे ATIA मिलेगा 2 साल बाद में, नहीं मिलेगा. आज की तारीख में वो भी तकलीफ है, बिकॉज यू डोंट हैव द क्लैरिटी. सो इफ वी हैव टू मेक द PPP मॉडल सक्सेसफुल, then I suggest that in the budget we should have that long term clarity कि भाई 3 साल बाद, 4 साल बाद. आज आप देखें अगर पावर में अगर आपको किसको बिड करना है PPP मॉडल में, तो आपको टैक्स हॉलीडे हर साल एक साल से बढ़ रहा है. पहले टिल 2011 था पावर हॉलीडे, देन 2012, अभी 2013 है. अगर आप बोलेंगे कि मैं पावर प्लांट सेट कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर हॉलीडे मिलेगी कि नहीं, एवरी ईयर आप वॉच कर रहे हो बजट को, एक्सटेंड होगा कि नहीं. तो अगर आप वो कंफर्ट देते हैं टू द डेवलपर कि भाई नहीं, डोंट वरी, दिस विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 3 years 5 years, तो ये PPP मॉडल वगैरह और दूसरे बिड प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये मेरा मानना है. महेश्वरी जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है इस मामले में? क्या PPP मॉडल को कारगर बनाने के लिए सरकार और क्या कर सकती है? क्योंकि एम्बिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसा कि कहा, टैक्स का भी मसला है यहाँ पर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं. एनवायरमेंटल क्लियरेंस का मसला बार बार उठ के आता है. तो सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाने चाहिए? मेरा इसमें जो ये पार्टनरशिप की बात हुई है बहुत सही है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ खाली बोलना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट, हम ये PPP इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है इतने सारे प्रोजेक्ट लगाने के लिए. अगर इनके पास, उनको टैक्स नहीं देना बिकॉज उसमें उनको लगता है थोड़ा रेवेन्यू लॉस होगा, तो फिर वो खुद लगा ले प्रोजेक्ट्स. अगर वो खुद नहीं लगा सकते, तो ये जैसे प्रवेश जी ने बोला कि ये पार्टनरशिप इशू है, तो कंट्री को अगर डेवलप करना है तो साझेदारी है. तो अगर यू हैव टू, द गवर्नमेंट विल हैव टू प्ले इट्स रोल नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, बट ऑल्सो कि ठीक है, हम इसको देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक्सपेंसिव होएगा तो वो काम आम आदमी को अफेक्ट करेगा, बाकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा. और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चीप करना है तो हमें लॉन्ग टेनर फंडिंग, चीपर फंडिंग एंड देयरफॉर टैक्स बेनिफिट्स टू दैट एक्सटेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को, डेट को चीप बना जाए, रिटेल लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए. ऑल ऑफ दीज फॉल इन दैट बास्केट, एंड आई थिंक वी हैव टू get the message across to the government and to the people that tax benefits have to be given. If you do not wish to give it, then you should fund it, because otherwise you are making infrastructure per se expensive for common man or for the industry and for the users. So I think that is something that we need, because it's a fact that if government actually implements the project, it will probably be cheaper because they will get the cheapest source of finance. Now if a private sector is going to do, और उनको कई सारे रिस्क्स उनको फेस करने हैं, तो उसका रिस्क प्राइसिंग बढ़ जाता है.
उस प्राइसिंग को थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स या करके देने की ज़रूरत है। तो ये हो गए टैक्स पास के। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जिसका मेरे ख्याल में हमको बजट से लिंक नहीं करना चाहिए। बजट एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम लोग सब एक क्यू लेते हैं कि गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, या इट्स एन एनुअल अनाउंसमेंट, बट बजट दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन and it should go ahead irrespective whether there is a budget or not budget. So ये जो गवर्नमेंट की साझेदारी की बात हुई, I think it's any time action, various processes, approvals happening, not happening, support coming, it's all a part of the thing. I would tend to in a big large way agree with Parvesh ki somewhere the word participation is getting missed out. So it's a huge issue. Tax, I believe, is also part of that participation. जी महेश्वर जी, एक फॉलोअप क्वेश्चन मैं आपसे और लेना चाहूंगा। हमने पिछले हफ्ते ये देखा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड लॉन्च किया, भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड लॉन्च हुआ। इसको कार्यरत बनाने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अपने आप में बहुत ही एक अच्छा आइडिया है, आईडीएफ है, पैसा चैनलाइज होगा, सेक्टर में आएगा, लेकिन इसको कारगर बनाने के लिए, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है? आई थिंक हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के ऊपर आ गए। सो ये जो आईडीएफ बनाए गए हैं, ये एक व्हीकल क्रिएट किया गया है जिससे कि ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स, जब कंस्ट्रक्शन में हो प्रोजेक्ट्स तो बैंक सपोर्ट कर सकते हैं, जब वो ऑपरेशन में हो जाएं, कंप्लीशन रिस्क उनका ख़त्म हो जाए तो ये अलग स्ट्रक्चर में चले जाएं। बिकॉज इंडिया में भी जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स का रिस्क लेने में उनको ज़्यादा कंफर्ट है। तो आईडीएफ इन रिटेल इन्वेस्टर्स को, इन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इनमें लाने के लिए एक प्रावधान है, एक तरीका है, और ये काफ़ी आगे बढ़ सकता है। फिर भी मैं इतना खाली बोलना चाहूँगा कि आईडीएफ सक्सीड होने के लिए अगेन एक रिटेल इन्वेस्टर को, एक इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के पास फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने की काफ़ी क्षमता है और उन्होंने किया भी है। हमने भी टैक्स सेविंग इंफ्रा बॉन्ड किए थे, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और जब रिस्पॉन्स 2 साल हमने मेहनत करके मार्केट बनाया तो वो टैक्स क्लॉज जो है एटीसीसीएफ को निकाल दिया गया। तो अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कम से कम 15 साल 20 साल के हिसाब से, और अगर हम साल 2 साल के हिसाब से अगर उसको टैक्स सेविंग देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। मैं चर्चा सबके साथ जारी रखूंगा, समय हमारे पास बहुत कम है, विषय बहुत सारे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले आपने देखा, सभी विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। हम पीपीपी मॉडल की बात कर रहे थे कि क्या पीपीपी मॉडल अपने आप में कारगर सिद्ध हुआ है, और यदि नहीं तो और क्या प्रावधान किए जाने चाहिए। मोहंती जी, आप बताइए संक्षेप में। एक डेवलपर होने के नाते हमने एक ट्रेंड देखा है कि ज्यादातर डेवलपर जो है अब बीओटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ईपीसी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि रिस्क कम होता है। एज ए डेवलपर आपकी क्या राय है? हमने हाल फिलहाल में देखा 2 बड़े डेवलपर्स लार्ज रोड प्रोजेक्ट से निकल गए क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स उनके लिए अनवायबल नहीं थे। तो इस संदर्भ में इंडस्ट्री का रुझान किस तरफ जा रहा है अब? पीपीपी प्रोजेक्ट में देखा जाएगा, एक दूसरा दिशा से देखा जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि जे मोर देन द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट व्हाट द प्राइवेट सेक्टर हैज ब्रॉट इन, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या किया है कि जो एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी बिल्डअप। आप देखेंगे तो पीपीपी प्रोजेक्ट और कैश प्रोजेक्ट और ईपीसी प्रोजेक्ट का कंपैरिजन, द कॉस्ट ओवररन एंड टाइम ओवररन इन ईपीसी प्रोजेक्ट्स आर ऑलमोस्ट 3 times more than the PPP projects, in spite of the fact that the environment clearance, forest clearance, land acquisition has been a major deterrent in implementing BOT projects. So biggest contribution PPP का private sector से capacity build up and efficiency brought into the infrastructure sector, जो कि ultimately in the country to create infrastructure it has become cheaper. Coming back to the comparison between EPC project and in the PPP projects, yes, इन बिटवीन देयर इज सिचुएशन ऐसा आया था जिसमें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी बीओटी प्रोजेक्ट को एक ऑर्डर बुकिंग का तरीका समझ लिए थे कि जो ऑर्डर बुकिंग बढ़ाने के लिए बीओटी प्रोजेक्ट लिए, बट सुनर और लैटर उनको समझ में आया कि जो बैंक लोन करके ऑर्डर बुकिंग करवाना एक दूसरा पहलू है कि गेम है, रादर देन बिल्डिंग अप द ऑर्डर बाय जस्ट टेकिंग ए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, कैश कॉन्ट्रैक्ट।
So now I think the industry is clearly divided into a concessionaire business or a development business, and the other segment is the construction business. So more or less market will get stabilized and correction will happen. There will be limited and better balance sheet players will come into the concession business, where weaker balance sheet players and having better implementation capability will be there into the construction business. So this market correction will happen as we evolve in this industry. Coming back to the IDF, I just wanted to add something. IDF in 2 counts is a very good measure. First thing, it will provide a long-term fund and a cheaper fund. So finally the infrastructure industry will become efficient, no doubt about it. But to attract more investment into this, I will take this opportunity to suggest that there should be in this budget, might be they can propose a independent credit rating agency for each of the projects, so that the investment from IDF into the different infrastructure projects will become much easier, and might be the public will have a common platform or a vehicle to know which are the projects are good and how the investment is happening, so that their money is secured. So rating might be in the long run will play a very big role in the IDF effectiveness in the country, especially for the operational projects. जी ऐसा नहीं है कि सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं। पिछले बजट से यदि हम इस बजट की बात करें तो बीच में सरकार ने काफी कदम उठाए। सीसीआई की घोषणा की गई, सीसीआई एस्टैब्लिश किया गया। मैं बात कर रहा हूं कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टमेंट पे, उसके अलावा लैंड एक्विजिशन बिल को भी फास्ट करने की बात की जा रही है। प्रवेश जी आप बताइए, इन दोनों जो कदम उठाए गए हैं, सीसीआई तो अब लागू हो गया है, जो पहला हमने डिसीजन देखा वो भी पूरी तरह नहीं कारगर सिद्ध हुआ, वो भी दोबारा डेफर हो गया। तो सीसीआई अपने आप में कितना कारगर है, और सवाल वही, इसको कारगर बनाने के लिए क्या अहम है, और दूसरा लैंड एक्विजिशन बिल में जो प्रावधान किए गए, क्या वो सही एक दिशा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए? सर ऐसा है कि सीसीआई अपने आप में बड़ा अच्छा आइडिया है। आइडिया लेवल पे शायद मैंने कोई भी बुरा आइडिया देखा नहीं है पिछले कई सालों में। डिपेंड करता है उस आइडिया का आगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका करना क्या है। अब आप अगर सीसीआई का प्रोविजन ले लें, डिसीजन को फास्ट ट्रैक तो किया जा सकता है, लेकिन डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। आप बोल सकते हैं साहब कि अगर आप ये रिपोर्ट ऐसे ऐसे टाइम पर लें तो हम आपको ये चीज़ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क एलोकेशन ही एक उस तरीके से कर रहे हैं जो आदमी जो एजेंसी उस रिस्क को हैंडल नहीं कर सकता है। अब जैसे महंती जी बता रहे थे कि अगर डीजल प्राइस बढ़ गए हैं, या किसी ने सॉइल को एक माइनर मिनरल घोषित कर दिया है, या एग्रीगेट माइनिंग बंद कर दी है, तो साहब ये सरकार का काम है, ये सरकार वर्सेस सरकार है। ये प्राइवेट सेक्टर के जाके ये जिम्मेदारी उसको देना कि साहब आप भुगतिए इसका परिणाम, तो प्राइवेट सेक्टर इसको भुगतेगा कैसे? ये चीज़ें सीसीआई तो हल नहीं करेगा, ये तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल की चीज़ें हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, आप आइडिया बनाइए ना बनाइए, बहुत पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड्स हैं, लाइन लगी हुई जो कि ऑपरेटिंग सेट में पैसा डालने को तैयार है, लोग 20 साल 30 साल का पैसा देने को तैयार, लेकिन बैंकेबल प्रोजेक्ट भी तो दिखाई दे, इम्प्लीमेंटेबल प्रोजेक्ट दिखाई दे। इशू ये बन गया है नहीं कि इंसेंटिव चाहिए, ठीक है, टैक्स का एक स्टेबिलिटी रिजीम होना चाहिए, वो समझ आता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है अगर आप रिस्क है, अगर आप एक गलत जगह पे एलोकेट कर रहे हैं उस एजेंसी को जो उस रिस्क को हैंडल नहीं कर सकती है, माइनर मिनरल घोषित कर देना, या एग्रीगेट की डिगिंग बंद करवा देना, या एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं देना, ये सरकार वर्सेस सरकार का काम है। ये सारे रिस्क प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डाल देना, प्राइवेट सेक्टर इसको हैंडल करेगा कैसे? ना तो उसको प्राइस कर सकता है, ना उसको बिड कर सकता है, तो क्या करेगा? थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। तो आई थिंक दुख होता है देश में जहां इकोनॉमी 5.5% ग्रो कर रही है, हम शायद 1 लाख करोड़ की एक्टिविटी हर साल की खो रहे हैं। इस साल में हमने 1200-1300 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे हमने बिड नहीं किए हैं। लास्ट ईयर हमने 8,500 किलोमीटर हाईवे बिड किए थे सिर्फ नेशनल लेवल पे। स्टेट का मिलाने शायद 14-15 हजार किलोमीटर बिड किए थे। आज की डेट में 3-4 हजार से ज्यादा बिड नहीं हुआ है। आप 10,000 किलोमीटर अगर हाईवे बिड नहीं कर रहे हैं, 6 करोड़ पर आग ले लीजिए, 7 करोड़ पर किलोमीटर ले लीजिए एवरेज कॉस्ट, 70-80 हजार का तो बिड नहीं गया सर मार्केट में। किस लिए? कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, कोई इशू चेंज, इम्प्लीमेंटेशन, पार्टनरशिप मिसिंग हो गया। दूसरा क्या है, जो रिस्क अब इतने समय तक देते आ रहे थे, जब तक वो रिस्क चल रहा थी, अब वो ऐसी कगार पे पहुंच गया कि अब वो टिप ओवर कर गया है। अब वो रिस्क नहीं बेयर किया जा सकता। जो एडवेंचरिज्म था आइदर साइड से, चाहे वो डेवलपर की साइड से था, चाहे वो लेंडर की साइड से था, चाहे वो स्पॉन्सर की साइड से था, वो इस कंडीशन पे पहुंच गया कि अभी इकोनॉमी, अभी डेवलपर्स, अभी जो सिस्टमिक रिस्क इतना हो गया है कि वो उसको नहीं बेयर कर पाएगा। ये लॉकजाम को तोड़ना पड़ेगा। बजट के पहले आता है, बाद में आता है, उसका शायद इतना ज्यादा कोई इशू नहीं है आज के लिए। हेमल, टैक्स के पर्पज से थोड़ा सा और बताइए कि पहले तो हमने बात की एटीआई की कि कैसे
टैक्स बेनिफिट दिए जाने चाहिए जिससे कि पैसा इस सेक्टर में आए, लेकिन जो डेवलपर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर हैं, उनको किस प्रकार के टैक्स ब्रेक सरकार दे सकती है जिससे उनको भी एक इंसेंटिव मिले प्रोजेक्ट्स बिड करने के लिए? हाल फिलहाल में यदि आप न्यूज़पेपर्स पढ़े हो तो उसमें एक और रिपोर्ट आई थी जिसने ये सजेस्ट किया था कि जो प्रॉफिट लिंक टैक्स इंसेंटिव होते हैं डेवलपर्स के लिए, शायद उनमें भी कटौती कर दी जाएगी इस बजट में, तो ये तो और नेगेटिव बात हो गई उनके लिए। हाँ बिल्कुल आशुतोष, अभी ये हैज लेड टू लॉट ऑफ एप्रीहेंशन इन डेवलपर्स, क्योंकि हालांकि डायरेक्ट टैक्स कोड में ये बात की थी कि प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव के बदले दे विल ब्रिंग इन एक्सपेंडिचर लिंक्ड इंसेंटिव, विच बेसिकली मीन्स कि आप जितना इन्वेस्ट करो उतना आपको लंबा बेनिफिट मिल सकता है। बट ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट डालें, बाद में आप दूसरा प्रोजेक्ट डालें, बाय कंसेशन अग्रीमेंट ईच प्रोजेक्ट इज इन सेपरेट कंपनी। तो अगर आप पहले में आपने 100 करोड़ डाले, दूसरे में आप 100 करोड़ डाले, हालांकि कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 करोड़, बट यू डोंट गेट द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर केप्ट इन सेपरेट कंपनीज। सो अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो बेनिफिट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर वो कम हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, द फैक्ट बाय द नेचर कि हर प्रोजेक्ट इज इन डिफरेंट एसपीवी और अ डिफरेंट कंपनी, उससे ये बेनिफिट और कम हो जाता है। फिर कि मैं 10 कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो मेरा ईच कंपनी इज सेपरेटली। सो मेरा मानना ये है कि अगर ये चेंज किया तो इट विल इम्पैक्ट एडवर्सली फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, and therefore even if it's implemented, then there has to be some basis where if at a group level if you are doing some investment in different companies you get that benefit। And also one more related point, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कि कभी मेरे एक प्रोजेक्ट प्रॉफिट कर रहा है, एक प्रोजेक्ट लॉस कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि मेरा ईच कंपनी इज टैक्स्ड इन सेपरेट। अभी ग्लोबली आप देखें देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन कि एक ग्रुप है, आप कंसोलिडेट करके मुझे देखो कि मेरा प्रॉफिट है, लॉस है, उस पर मैं टैक्स भरने को तैयार हूं। वो कॉन्सेप्ट अगर इफ नॉट टू द एंटायर कंट्री, एटलीस्ट हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप्स को लागू करें तो वो काफी हद तक ये बेनिफिट दे सकती है कि अगर मेरा लॉस है एक प्रोजेक्ट में, दूसरा है डिफरेंट एंटिटी है, बट आई विल स्टिल फाइल अ कंसोलिडेटेड रिटर्न। ये काफी हद तक बेनिफिशियल हो सकता है टू इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट आशुतोष। महेश्वरी जी, एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये कि जो आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, हमने ईसीबी रूट, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो रूट है, उसमें काफी प्रावधान किए गए, काफी इसमें बढ़ोतरी की गई है जिससे कि डेवलपर्स को फायदा हो, इस सेक्टर में पैसा चैनलाइज हो। लेकिन क्या ईसीबी ही अपने आप में एक कारगर कदम है? आईडीएफ दूसरा है, पब्लिक मनी को चैनलाइज करने की जरूरत है। तो सवाल घूम फिर के वहीं आता है कि क्या ये जो मौजूदा कदम जो है, जो मौजूदा सोर्सेज हैं फंडिंग के, क्या ये कारगर है? आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैं जो इस सेक्टर को लेंड करते हैं, आपकी क्या मांग होगी, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो सरकार हो, कि आपके पास फंड रेजिंग के और तरीके आपके पास आए जिससे आप और पैसा मार्केट से उठा सके, रिटेल निवेशकों से उठा सके, बैंकों से उठा सके और इस सेक्टर को लेंड कर सके? पैसे के दो सोर्सेज हैं। एक तो इंडियन के लिए मोंती जी ने भी बोला और हेमल ने भी बताया कि टैक्स स्टेबिलिटी करके आप कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अगर कुछ टैक्स बेनिफिट देंगे तो एक रिटेल मार्केट डेवलप होगा जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें एक लॉन्ग टर्म मार्केट बनाना है जहां प्राइवेट सेविंग्स खुद डायरेक्टली आ सके इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड दे आर इंसेंटिवाइज्ड, जिस तरह एक म्यूनी बॉन्ड मार्केट है यूएस में, उस तरह हम यहाँ एक इंफ्रा बॉन्ड मार्केट बना सकें, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा हुआ आपका ईसीबी का। तो आरबीआई ने एनकरेज ईसीबी का तो कर लिया है, लेकिन उसमें कुछ लेकिन है। खास कर यह है कि जो रूपी फ्लक्चुएशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट, उसकी वजह से जो अगर हमें उसके लिए कुछ फॉरवर्ड कवर्स लेने हो या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 ईयर और 6 ईयर कवर्स, तो वो काफ़ी उसका कॉस्ट बढ़ गया है। एंड द लैंडेड कॉस्ट ऑफ एफएक्स और ईसीबी इन इंडिया इज नॉट वेरी डिफरेंट देन फ्रॉम व्हाट इंडियन रूपी रिसोर्सेज आर। सो एक बार स्टेबल एक्सचेंज रेट एनवायरनमेंट हो जाए थोड़ा सा,
उसके लिए मेरे ख्याल में 5-6 महीने स्टेबल एक्सचेंज एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। वो हो जाए तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरा है कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट पे अगर हम एक्चुअली इम्प्रूवमेंट दिखा सकें तो मैं होप करता हूं कि कंट्री की रेटिंग शायद थोड़ी सी ज़्यादा बुलंद होगी, और अगर वो बुलंद होगी तो उसमें हमारे इंडियन एंटिटीज़ का रेजिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा। सो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वुड लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में, इंडियन एंड दिस थिंग। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा चर्चा करेंगे कि इस सेक्टर को वायबल बनाने के लिए ताकि डेवलपर्स अग्रेसिवली बिड करें, ताकि प्रोजेक्ट्स आए और प्रोजेक्ट्स वायबल बने, और क्या सरकार की तरफ से कार्य किए जाने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। मनी मंत्रा में सभी का स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले जैसा कि हमने देखा, हमारे सभी विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी, ईसीबी पे बात की गई, कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की गई। सवाल एक ये भी उठता है कि क्या एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की जरूरत है कि एक जिसे कहते हैं वन स्टॉप शॉप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जाए, क्लियरेंस लेके आए। प्रवेश जी, आप बताइए, सिंगल विंडो क्लियरेंस कितना अहम है इस समय? सब सिंगल विंडो क्लियरेंस एक कॉन्सेप्ट लेवल पे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होता नहीं है कहीं भी ये, और ना ही इसकी शायद कोई लंबी जोड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे बढ़िया अगर आपको क्लियरेंसेस का ध्यान रखना है तो जैसे आपको यूएमपीपी है कि आप एसपीवी लेते हैं, आप एसपीवी में सारे परमिशन, सारे अप्रूवल्स पहले लेके तब आप बिड करते हैं, तो आप इससे बढ़िया आप वो मॉडल कर सकते हैं जहाँ लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जब बड़े बड़े 3,000, 4,000, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको आप एसपीवी ले आइए, एसपीवी में सारे अप्रूवल ले लीजिए, सारे रिस्क काउंट कर लीजिए, उसके बाद में आप उसको एक प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को आप बिड करिए, वो थोड़ा ज़्यादा वायबल है। जहाँ पे सीसीआई जो लेड बाय द चीफ ऑफ द कंट्री इज ओनली एबल टू डू सो मच, वहाँ एक सिंगल विंडो में एक आईएएस ऑफिसर या किसी को बिठा के उससे एक्सपेक्ट करना कि आप सबकी जगह पे आप एक परमिशन देंगे, वो होगा कैसे? वो उसका कोई जरूरत है नहीं, और मेरे वो होने वाला भी नहीं है। उससे बढ़िया आपको करना है, आप लार्ज प्रोजेक्ट लीजिए, आप उसको एसपीवी में डालिए, एसपीवी में सारे परमिशन लीजिए, आप यूएमपीपी में कर सकते हैं, तो आप 5,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, 10,000 करोड़ के आप डीएफसीसी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, 10,000 करोड़ के आप मेट्रो प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं, आप उसमें लाके परमिशन लेकर वैसे कीजिए। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होते हैं मैंने तो एक छोटे से फैक्ट्री में भी नहीं देखा है। लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट में जहाँ पे के फेडरल एजेंसीज हैं, जहाँ पे स्टेट एजेंसीज हैं, बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये सारे के सारे परमिशन चाहिए। ये सिंगल विंडो से होता हुआ मुझे तो दिखाई देता नहीं, शायद होने वाला भी नहीं। मोहंती जी, हमने हाल फिलहाल में ऐसा देखा है कि बहुत सारे डेवलपर्स के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि हमारे सारे विशेषज्ञों ने और आपने भी कहा कि पैसा बहुत है मार्केट में, यदि प्रोजेक्ट्स वायबल है तो लोग पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन डेवलपर्स अपने आप में उनके पास कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है? आप बताइए, डेवलपर के पर्सपेक्टिव से यदि आपसे पूछें तो कैश फ्लो क्रंच है या नहीं इस इंडस्ट्री में अभी? ये प्रश्न का जवाब देने का पहले मैं एक ईसीबी का ऊपर बोलना चाहूँगा कि जो ईसीबी का ऊपर जैसे बोले कि हाउ द ईसीबी कैन बी चैनलाइज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, उसका और एक पहलू भी है। आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में अनसर्टेनिटी इज सो मच, जैसा कि मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी इज द हाइएस्ट in considering other investments. So, for example, if you invest 100 rupees, it gets multiplied 3 to 4 times as far as the economic impact is concerned. Similarly, when there is a downturn like this situation, when the growth is come to 5%, the multiplying effect on the regression is also that much. So, the infrastructure industry being a fast generation industry is not capable enough today to absorb these shocks. That's why the cash is running out of the system, and honestly speaking, the infrastructure industry is as आउट ऑफ कैश टुडे। इसमें एक चीज किया जाएगा, आपका चैनल का माध्यम में एक सजेशन देना चाहता हूं, शायद दोनों ईसीबी और इन्वेस्टमेंट और डेवलपर और कंसेशनर का रिस्क मिटिगेशन हो सकता है कि इफ वी इंट्रोड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट इंश्योरेंस इन दिस बिल इन द बजट, देन दैट विल बी ए ग्रेट रिलीवर for the effect of mitigating the risk at the concessionaire side, as well as channelizing the funds through ECB and the investment through the as earlier I had suggested that a infrastructure project rating should be done. Similarly, infrastructure credit insurance should be introduced. Then the more and more fund will be channelized to the projects. And finally, coming to your question,
यस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास आज पैसा नहीं है, दो कारण के लिए। पहले कीजिए कैश साइकिल का टाइम 30 दिन से अभी 90 दिन की 100 दिन पहुंच गया है, सो नेचुरली इतना पैसा नहीं है। दूसरा चीज है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि जो कोई प्रोजेक्ट में लॉस हो रहा है तो कोई प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है, और जो जिसमें प्रॉफिट है टुडे वो कंसेशन एग्रीमेंट हो कि पॉलिसी पैरालिसिस हो कि डिटरेंट्स इन द कंसेशन एग्रीमेंट और बाय द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, आप पैसा लेने के लिए आपके पास आज बैंक देने के लिए तैयार है तो एनएचआई शायद अप्रूवल नहीं दे रहा है कि पॉलिसी क्लियरेंस नहीं है कि कंसेशन एग्रीमेंट में डिटरेंट है। सो टू अनलॉक द value which has been created in different projects is also very critical, and might be government can do something to ease out those processes so that the value created in some of the existing projects can be unlocked and it can be channelized to the new projects, or it can be utilized to offset the losses into the other projects. जी महेश्वरी जी, प्रवेश जी ने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट रखा था कि रेगुलेटर भी इस क्षेत्र में काफी कुछ हासिल कर सकता है। आपकी राय जानना चाहूंगा, आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? क्या रेगुलेटर के आने से परिस्थितियां सुधर सकती हैं? आई थिंक किसी एक चीज से परिस्थिति नहीं सुधरेगी। रेगुलेटर इंपॉर्टेंट है, जहां जिस सेक्टर्स में, जैसे रोड्स में उन्होंने बताया या रेलवेज में बताया, रेगुलेटर होने से सहूलियत जरूर होगी इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग डिस्प्यूट। बट आई थिंक जब उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टनरशिप, हमें ये भी देखना है कि ये डिस्प्यूट्स हो ही नहीं या कम हो, तो उसके लिए भी एक माहौल क्रिएट करना होता है। और इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, अप्रूवल्स वगैरह के जो हैं, अगेन हमारे पास कई पॉलिसीज हैं, कई एजेंसीज हैं जिन सेक्टर्स में रेगुलेटर है। ऐसा नहीं है कि वहाँ डिस्प्यूट्स नहीं है। अब आप पावर का देख लीजिए, वहाँ रेगुलेटर है लेकिन पेमेंट्स नहीं हो रहा है एसीबी से, उधर कोल में भी प्रॉब्लम है, तो खाली रेगुलेटर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ, जरूर एक फोरम हो जाता है फॉर अ डिस्पैशनेट हियरिंग, तो वो जरूरी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ पीपल, दोनों पार्टीज ये नहीं समझें कि पार्टनरशिप है और हमें थोड़ा गिव एंड टेक करके इसको आगे निभाना है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें, तो खाली एक रेगुलेटर से फायदा नहीं होगा। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है। सवाल मेरे पास बहुत सारे थे लेकिन मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। महेश्वरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही अहम आपने प्रश्न भी रखे और काफी पॉइंट्स भी रखे जिन पे मेरे हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए। मोहंती साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने भी काफी सारे सवाल रखे हैं सरकार के सामने, उम्मीद ये की जाती है कि सरकार इन पे कुछ कार्य तो जरूर करे। हेमल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्रवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे डिबेट चलता रहेगा, लेकिन सरकार को इस समय कार्य करने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से, बैंकों के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंस कंपनीज के पर्सपेक्टिव से और भारत की अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से भी इस सेक्टर को कारगर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल मनी मंत्रा में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।